Hey, good morning students. Welcome back to my channel Learning Maths by Sonu Lamba. Dear students, in this video I will start 14.4 exercise introduction from your class 9th and your chapter is statistics. Right? In my last videos I have already covered 14.1, 14.2 and 14.3 exercise introduction, and today we will discuss 14.4 exercise introduction. And students, your 14.4 exercise is completely based on measures of central tendency. In my last video, I have covered the introduction part of chapter 14. In that, I have already told you that in this chapter we will discuss measures of central tendency. In measures of central tendency, we mainly discuss what is the mean, mode and the median. We have three central tendencies. First is mean, second is mode and third is median. Now we will discuss all these in detail one by one. What is the mean? First topic is mean. Mean आपका क्या होगा बेटा? Mean is the, इसका definition देखो. Mean is the sum of all observations divided by total number of observations. Mean आपका क्या होगा बेटा? Mean is the sum of all the observations divided by number of observations. Means क्या हुआ इसका? आपके पास जितने भी number of observations है उनका total sum divided by number of observations, or you can say mean will be equal to sum of all observations divided by number of observations. Right? Mean में आप लोग क्या करोगे? जो भी आपकी ऑब्जर्वेशंस है उनका टोटल सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. फॉर एग्जांपल, इफ वी आर हैविंग 4 observations, like first is your 4 observations of marks 10, 20, 30 and 40. Now I say what will be the mean of this observation. Mean आप कैसे निकालोगे? Mean will be sum of all observations. Observations क्या है आपके? 10, 20, 30 and 40. Now do the sum. 10, 20, 30 plus 40 divided by number of observations. How many observations are there? 1, 2, 3 and 4. Now divide this by 4. Sum करो इन सबका. 0, 4 plus 3 will be 7, 7 plus 3 will be 10. Divided by 4 is equals to 25. Means 25 will be the mean of these observations. Right? Mean आप कैसे निकालोगे? If we are having small number of observations, then sum of all the observations divided by total number of observations. Right? Now, see बेटा, mean को आप लोग कैसे represent करते हो? What is the symbol for the mean? Mean को हम लोग represent करते हैं x के ऊपर बार. इसको रीड करेंगे हम x बार. राइट? मीन लिखो या आप लिखो x बार, बोथ वे मीन सेम. राइट? नाउ अभी तो हमारे पास था, फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग ऑब्जर्वेशंस. इफ वी आर हैविंग ऑब्जर्वेशंस, if we are having observations x1, x2, x3 and x4. राइट? हमारे पास है 4 ऑब्जर्वेशंस x1, x2, x3 and x4. इन दिस केस मीन क्या होगा आपका? मीन, और यू कैन से x बार विल बी सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. राइट? जब हमारे पास स्मॉल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है उस टाइम आप क्या लिखोगे? सम ऑफ ऑल
ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने आपके 1 2 3 एंड 4, राइट। दिस विल बी योर x बार, राइट। ये हमने केस लिया इफ वी आर हैविंग ओनली 4 ऑब्जर्वेशंस, राइट। नाउ हियर सेम केस में अगर हम लोग लेके चलते हैं बेटा, हमारे पास है n ऑब्जर्वेशंस, राइट। x1 x2 x3 x4 एंड सो ऑन अप टू n। कितने ऑब्जर्वेशंस आपके पास? n ऑब्जर्वेशंस। हम लोगों ने अब लिया n ऑब्जर्वेशंस का केस, तो आप लोग क्या लिखोगे इस केस में? आपका x बार क्या होगा? x बार विल बी x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस सो ऑन, लास्ट कहां तक जाओगे आप लोग? xn। n का वैल्यू आपका कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल n इज योर 5, तो आप क्या करोगे? x1 x2 x3 x4 x5 तक जाओगे। जहां तक भी आपके ऑब्जर्वेशंस गिवन है वही आपका क्या होगा? n का वैल्यू। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं यहाँ पे? हमने कितने ऑब्जर्वेशंस लिए हैं? n, तो डिवाइडेड बाय n। दिस इज द फॉर्मूला फॉर n ऑब्जर्वेशंस। इफ वी आर हैविंग n ऑब्जर्वेशंस देन मीन कैसे निकालोगे आप लोग? x बार विल बी x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस सो ऑन xn एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं आपके? n, राइट। और इसको आप लोग शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हो बेटा? x बार विल बी इक्वल्स टू समीशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 टू n, यहाँ पे लिखोगे आप लोग xi डिवाइडेड बाय n। इसका मीनिंग क्या हुआ आपका? जो आपका ये सिंबल है, इस सिंबल को बोलते हो आप लोग समीशन, मींस सम। इसको रीड करोगे सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस xi, i की वैल्यू आप कहां से कहां तक है? i इज इक्वल्स टू 1 टू n। इसका मीनिंग भी आपका यही है बेटा, जब आप लोग आपका समीशन i इक्वल्स टू 1 टू n xi को ओपन करोगे तो क्या लिखोगे? i की वैल्यू 1 से स्टार्ट करोगे एंड n तक जाओगे। x1 समीशन है, इट मींस आपका सम होगा। x1 i का वैल्यू अब हमने 2 लिया, x2 i का वैल्यू नेक्स्ट हम लोगों ने x3 लिया एंड सो ऑन। दिस प्रोसेस आपका कहां तक जाएगा? i का वैल्यू है n तक, लास्ट नंबर विल बी योर n। n का वैल्यू आपका n इज एनी नेचुरल नंबर, राइट। n आपका है जितना भी आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, और यू कैन से नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। n आपका क्या है? जो भी आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस गिवन है वही है आपका n का वैल्यू, राइट। नाउ कम टू नेक्स्ट, मीन में ही अभी हम लोगों ने देखा कि अगर हमारे पास सिंपल ऑब्जर्वेशंस गिवन है तो हम लोग क्या करेंगे? डायरेक्ट सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस करेंगे एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। नाउ अब आपके पास केस आता है कि वी आर हैविंग लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग 100 ऑब्जर्वेशंस, 200 ऑब्जर्वेशंस, और वो जो ऑब्जर्वेशंस है उसमें आपके पास डाटा इस टाइप से है बेटा कि कुछ नंबर्स आपके हो रहे हैं उसमें रिपीट, राइट। इसमें आपका क्या हुआ? ऑब्जर्वेशंस आर रिपीटेड। व्हेन दिस केस अराइजेस, उस टाइम आप क्या करोगे बेटा? करने को तो आप क्या कर सकते हो? सबका सम करो एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कर दो। उस टाइम भी आप क्या करोगे? आपका मीन फाइंड आउट कर सकते हो, बट दिस प्रोसेस विल बी टू मच लेंथी इफ वी आर हैविंग 200 ऑब्जर्वेशंस। उस टाइम आपके लिए 200 नंबर्स का सम करना दैट विल बी अ टू मच हेक्टिक वर्क। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? जो ये डिफिकल्टी है इसको रिमूव करने के लिए हम लोग बनाएंगे अपना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। जब हमारे पास ऑब्जर्वेशंस लार्ज नंबर में है, वी आर हैविंग लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड सम ऑब्जर्वेशंस आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन, in that case we will make first our frequency distribution table, right? क्या करोगे आप लोग? फॉर एग्जाम्पल हमने लिया मार्क्स का ही केस, मार्क्स आपके पास किसी स्टूडेंट्स के एंड यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स,
आपने मार्क्स लिया उसको आप लोग रिप्रेजेंट करोगे xi से, राइट। और जो आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में आप क्या दिखा रहे हो, फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्टूडेंट्स की एक पर्टिकुलर मार्क्स जो है वो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने पर्टिकुलर मार्क्स को गेन किया, वो क्या होगा आपका, दैट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर मार्क। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी स्टूडेंट ने गेट किए 10 मार्क्स, 20, 30 एंड 40, आउट ऑफ 50 हम लोगों ने देखा 10, 20, 30 एंड 40 मार्क्स स्टूडेंट्स ने गेट किए हैं। 10 जो मार्क्स है आपका वो हमने सपोज किया कि 3 स्टूडेंट्स ने 10 मार्क्स गेट किए, राइट। 10 मार्क्स की फ्रीक्वेंसी क्या होगी आपकी 3। नेक्स्ट अगर किसी 20 मार्क्स गेट किए हैं 2 स्टूडेंट्स ने, then the frequency of 20 will be 2. Next 30 marks get किए हैं 3 स्टूडेंट्स ने, then frequency of 30 marks will be 3. Next 40 जो मार्क्स है वो गेट किए हैं ओनली 1 स्टूडेंट ने, राइट। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे बेटा, अपना नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे xi एंड fi। xi इंटू fi का टेबल बनाएंगे, मीन्स इन दोनों का हम लोग क्या करेंगे अभी मल्टीप्लाई, राइट। करो मल्टीप्लाई, 10 into 3 will be 30, 20 into 2 will be 40, 30 into 3 will be 90 and 40 into 1 will be 40। इसके बाद आप क्या करोगे, सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी निकालो एंड सम ऑफ xi एंड fi। यहाँ पे आप लोग निकालोगे सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, आई की वैल्यू फ्रीक्वेंसीज कितनी आपकी 1, 2, 3 एंड 4 ऑब्जर्वेशंस है, आई की वैल्यू 1 to 4 जाएगी एंड fi। इसका मीनिंग क्या है आपका f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f4। सम करो इनका क्या आ गया, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 1 विल बी 9, राइट। टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज कितने आपके 9। इसका मतलब क्या है आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है आपके 9। नाउ xi एंड fi का सम निकालो यहाँ पे, अगेन i इक्वल्स टू 1 to 4, सेम 1, 2, 3, 4 ऑब्जर्वेशंस आपके पास, क्या करोगे xi इंटू fi, इनका सम करो अभी 30, 40, 90 एंड 80, इन सबका सम करोगे 0 and 4 plus 3 will be 7, 7 plus 9 will be 16, 16 plus 4 will be 20। Means xi fi का टोटल सम क्या है आपका 200। इस केस में अभी आप क्या निकालोगे बेटा, मीन आपका यहाँ पे क्या होगा, मीन विल बी समीशन i equals to 1 to n xi fi अपॉन समीशन i equals to 1 to n fi, राइट। मीनिंग क्या हुआ इसका, सेम वही है जो आप लोग टोटल सम करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कर रहे थे, उसको हमने सिर्फ थोड़ा सिंप्लीफाई किया, राइट। अभी लिखो आप अपना, इसका वैल्यू क्या है आपका 200 एंड fi का टोटल सम क्या है आपका 9, 200 डिवाइडेड बाय 9। इसको डिवाइड करके आप लोग यहाँ पे जो भी लिखोगे दैट विल बी योर मीन। क्या है आपके मीन मार्क्स, राइट। क्या देखा हमने, जब हमारे पास ऑब्जर्वेशंस लार्ज नंबर में है और उनकी फ्रीक्वेंसी है जो 1 से ग्रेटर है, मीन्स एक नंबर जो पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन है दैट इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन, एट दैट टाइम वी विल मेक आवर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एंड फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल वी विल फाइंड आउट xi इंटू fi। हर एक ऑब्जर्वेशन के लिए हम लोग xi इंटू fi को कैलकुलेट करेंगे। आफ्टर दैट जो हमारा fi है उसका टोटल सम करेंगे, xi इंटू fi जो हमारा आया उसका टोटल सम करेंगे। आफ्टर दैट वी विल यूज दिस फॉर्मूला, मीन विल बी इक्वल्स टू समीशन i इक्वल्स टू 1 to n xi इंटू fi डिवाइडेड बाय समीशन i इक्वल्स टू 1 to n fi। इनका वैल्यूज पुट करेंगे, उसके बाद हमारे पास जो नंबर आएगा दैट विल बी द मीन ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन, राइट। अभी देखो इसमें हम लोगों ने क्या किया बेटा, कि जो हमारे 10 मार्क्स थे उसका फ्रीक्वेंसी क्या था आपका 3। यहाँ पे हमने क्या कर दिया 10 into 3 will be 30,
30, राइट। बात आपकी वही है, बस यहाँ पे आपने क्या किया, अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई किया, राइट। नाउ आपको फॉर्मूलेस क्या क्या याद करने हैं अभी मीन के लिए। फर्स्ट तो आपको करना है कि अगर आपके पास सिंपल ऑब्जर्वेशंस गिवन है उस टाइम आपका मीन क्या होगा, स्मॉल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, तो क्या करोगे आप लोग, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या है यहाँ पे आपके 4। इफ यू आर हैविंग लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, n ऑब्जर्वेशंस, उस टाइम x1 प्लस x2 प्लस x3 so on xn divided by number of observations are n, or you can say summation I equals to 1 to n xi divided by n, right। थर्ड फॉर्मूला हम लोगों ने क्या रीड किया, अगर हमारे पास ऑब्जर्वेशंस लार्ज नंबर में है एंड सम ऑब्जर्वेशंस आर रिपीटेड, उस टाइम आप लोग क्या यूज करोगे, समीशन I equals to 1 to n xi into fi divided by summation I equals to 1 to n fi, right। मीन के लिए आप लोगों को ये 3 फॉर्मूलेस याद करने हैं, ओके। ऑल द फॉर्मूलेस आर सेम, बस थोड़ा उनका राइट करने का मेथड अलग है कि स्मॉल ऑब्जर्वेशन है तो आप लोग डायरेक्ट लिखोगे, लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है देन यू विल राइट इन दिस वे, एंड अगर आपके पास ऑब्जर्वेशन अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है, लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है देन यू विल यूज दिस फॉर्मूला, right। Now come to the examples from your NCERT book, example number 10। see your example number 10 is beta 5 people were asked about the time। क्या बोला इन्होंने, 5 people से टाइम के लिए पूछा गया, in a week they spend in doing social work। क्या बोला है, 5 people से ये पूछा गया कि वो एक वीक में सोशल वर्क पे कितना टाइम स्पेंड करते हैं। They said 10, 7, 13, 20 and 15 hours respectively। उन्होंने ये अपना टाइम बताया। अभी आपको क्या करना है, find the mean time they devoted for the social work। We have to find out the mean time for all these 5 people कि उन्होंने सोशल वर्क में कितना mean time spend किया। Now see its solution। क्या बोला है इन्होंने, टाइम स्पेंड इन सोशल वर्क क्या गिवन है आपको, 10 आवर्स, 7 आवर्स, 13 आवर्स, 20 आवर्स एंड 15 आवर्स, राइट। ये आपको टाइम गिवन है आवर्स में। अभी आपको निकालना क्या है, मीन टाइम डिवोटेड। मीन टाइम डिवोटेड क्या आएगा आपका, टोटल टाइम, total number of sum of all observations, sum of all observations divided by number of observations, right। sum of all observations divided by number of observations, do sum of observations क्या है आपका, 10 plus 7 plus 13 plus 20 plus 15 and the number of observations are, क्वेश्चन में भी देखोगे तो आपको क्या गिवन है, 5 people। यहाँ पे काउंट करो 1 2 3 4 and 5। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने आपके, 5। नाउ डिवाइड दिस बाय 5। अभी इसका जब आप लोग टोटल सम करोगे देन दैट विल बी योर 65। 65 डिवाइडेड बाय 5 क्या आएगा आपका, 13 आवर्स। 13 आवर्स आपका क्या आ गया, मीन टाइम, कि हर एक आदमी ने जो अपना टाइम स्पेंड किया सोशल वर्क में उसका मीन क्या है, 13 आवर्स, राइट। ये आपके पास जो स्मॉल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस थे तो आपने कैसे कैलकुलेट किया। नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 11। योर एग्जांपल नंबर 11 इज, क्या बोला इन्होंने, फाइंड द मीन ऑब्टेन्ड बाय, फाइंड द मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 30 स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास 9। मार्क्स आर एज, ये आपको मार्क्स गिवन है 30 स्टूडेंट्स के और आपसे पूछा गया व्हाट विल बी देयर मीन मार्क्स। नाउ मीन मार्क्स के लिए आप लोग क्या करोगे बेटा, मार्क्स आपको जो भी गिवन है आप लोग लिखोगे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन में मार्क्स,
जो भी आपको मार्क्स गिवन है, फॉर एग्जांपल 10, 20, 36, वो सारे मार्क्स मैं लिख नहीं रही हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन में सारे मार्क्स है, दैट विल बी टू मच टाइम कंज्यूमिंग। नाउ मीन मार्क्स क्या निकालोगे आप लोग? मीन मार्क्स के लिए क्या करोगे? टोटल मार्क्स, क्या करोगे? टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और यू कैन से sum of observations, sum of all observations divided by number of observations. Sum of observations में आप क्या करोगे? जितने भी आपके पास के मार्क्स हैं that will be your sum of observations. सम में क्या करोगे आप लोग? 10 plus 20 plus 36 plus सारे मार्क्स लिखोगे, लास्ट इज योर 60 plus 88 एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या है आपके? ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने आपके? 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, दैट इज योर 30। जब इसका आप लोग टोटल सम करोगे दैट विल बी इक्वल्स टू 1779 डिवाइडेड बाय 30। अब इसको डिवाइड करने के बाद आपका जो आएगा दैट विल बी योर 59.3। 59.3 इज द मीन मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स। जो 30 स्टूडेंट्स ने जो मार्क्स गेट किए उसका मीन क्या होगा आपका? 59.3। ये हुआ कि आपके पास जितने भी ऑब्जर्वेशंस थे आपने क्या किया? उनका टोटल सम किया एंड डिवाइड कर दिया 30 से। सी दिस इज टू मच लेंथी एंड टू मच टाइम कंज्यूमिंग। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? अभी जो मैंने आपको मेथड बताया था, फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाओ इसके लिए। सी आप क्या करोगे? आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग चलोगे, टेबल बनाओ आपका मार्क्स, जो स्टूडेंट्स ने मार्क्स गेट किए एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की पर्टिकुलर मार्क्स के लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, उसके बाद आप क्या निकालोगे? आपका xi इंटू fi। मार्क्स विल बी योर xi एंड फ्रीक्वेंसी विल बी योर fi। नाउ राइट, सी मार्क्स आपके इसमें जो जो आए हैं बेटा 10, 20, 36, आप लोग इन सबको लिखोगे मार्क्स में। जब आप लोग इन मार्क्स को लिखोगे तो दे आर 10, 20, 36, 40, 50, 56, 60, 70, 72, 80, 88, 92 एंड 95, राइट। ये है आपके पास मार्क्स। इसमें जो जो आपके पास मार्क्स गिवन है वो सारे मार्क्स आपके ये है। नाउ राइट देयर फ्रीक्वेंसीज। 10 जो मार्क्स है वो है 1, 20 की फ्रीक्वेंसी अगेन 1, 36 की फ्रीक्वेंसी है आपकी 3, 40 की है 4, 50 की फ्रीक्वेंसी है आपकी 3, 56 की है आपकी 2, 4, अगेन 4, 1, 1, 3, 2, 3 and 1, राइट। अभी ये क्या किया आप लोगों ने? जो भी आपके पास 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स गिवन थे यहाँ पे क्वेश्चन में, जो 30 स्टूडेंट के मार्क्स आपको गिवन है उसका आपने क्या किया? टेबल फॉर्मेट में राइट किया। 10 आपके मार्क्स में 10 लिखा, 20 लिखा, 36 लिखा। अगेन नेक्स्ट मार्क्स क्या होगा? इसको आप लोग असेंडिंग ऑर्डर में ही बना के चलोगे तो आपके पास इजी रहेगा, राइट। नेक्स्ट आपके पास क्या है? 40, नेक्स्ट इज योर 50। अभी आपने क्या किया? 10 मार्क्स में इसका कितने नंबर ऑफ टाइम्स आया? 10, 1 टाइम। 36 को देखो आप लोग, 1, 2 एंड 3। 36 कितने टाइम आपका? 3 टाइम, इसलिए 36 की फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी? 3, राइट। नाउ कैलकुलेट योर xi इंटू fi। क्या करोगे आप लोग? 10 इंटू 1 विल बी 10, 20 इंटू 1 विल बी 20, 36 इंटू 3 करो अभी 108, 40 इंटू 4 विल बी 160, 50 इंटू 3 विल बी 150, 56 इंटू 2 विल बी 1, 2 6 जा 12, 1 11, 60 इंटू 4 करो 240, 70 इंटू 4
and 95 into 1 will be 95. अब आप क्या करोगे, जो आपके पास fi है उसका टोटल सम करोगे। fi आपको यहाँ से भी पता चल रहा है, आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या गिवन है आपको 30, तो fi का वैल्यू आपका क्या आएगा टोटल सम 30 एंड xi into fi का टोटल सम करोगे, then that will be your again 1779। जो हमने लास्ट में इसका जो फर्स्ट मेथड जब डिस्कस किया था उस टाइम आपने क्या किया था, सब नंबर्स का जब सम किया तो क्या आया था आपका 1779, और यहाँ पे भी जब आपने सम किया तो आपके पास क्या आया 1779। नाउ सी मीन क्या होगा अब आपका, यहाँ से मीन विल बी समीशन i इक्वल्स टू 1 to n xi fi डिवाइडेड बाय समीशन i इक्वल्स टू 1 to n and fi, राइट। नाउ राइट देयर वैल्यूज, क्या है यहाँ पे 1779 डिवाइडेड बाय 30। जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो अगेन आपका क्या आएगा 59.3, राइट। ये आपका क्या आ गया मीन मार्क्स, x bar will be this, right। ये है आपका कि हाउ यू विल कैलकुलेट मीन। नाउ कम टू द नेक्स्ट सेंट्रल टेंडेंसी। नेक्स्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है आपका, मीन के बाद आपका आएगा अभी मोड मीडियन, राइट। फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कि मीडियन आपका क्या होगा। फर्स्ट हम लोग देखते हैं आपका मीडियन। मीडियन आपका क्या होगा बेटा, मीडियन के लिए आपके पास टू टाइप के केसेस आएंगे। मीडियन मीन्स आपका मिडल टर्म जो होगा, मिडल टर्म या यू कैन से मिडल ऑब्जर्वेशन, जो भी आपके पास ऑब्जर्वेशंस है उनका जो मिडल ऑब्जर्वेशन होगा दैट विल बी योर मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, राइट। मीडियन के लिए आपके पास आएगा इफ यू आर हैविंग odd number of observations, odd number of observations, right। observations आपके क्या होंगे, या तो odd number of होंगे या even number of observations होंगे। अगर आपके पास है odd number of observations उस टाइम आप क्या करोगे, आपके पास जो भी observation है फर्स्ट arrange the observations in ascending order or descending order। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, ये आपका दोनों के लिए होगा। अगर आपका ऑब्जर्वेशन नंबर ओड है या आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन है, इन बोथ केसेस फर्स्ट यू विल अरेंज योर ऑब्जर्वेशंस इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। आफ्टर दैट अगर आपके पास ऑब्जर्वेशंस है ओड, उस टाइम पे आपका मीडियन क्या होगा बेटा, मीडियन विल बी जितने भी आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है। फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो आप क्या करोगे n प्लस 1 बाई 12th ऑब्जर्वेशन जो होगा आपका दैट विल बी योर मीडियन ऑफ दैट ऑब्जर्वेशंस। जो आपके पास ऑब्जर्वेशंस है उसमें आपका n प्लस 1 बाई 2th ऑब्जर्वेशन जो होगा दैट विल बी योर मीडियन ऑफ दोज ऑब्जर्वेशंस। फॉर एग्जाम्पल लेके चलो, अगर हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं 2, 3, 4, 5 एंड 6, 1, 2, 3, 4, 5, राइट। दीज 5 नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस, इनको मैंने ऑलरेडी क्या लिखा है असेंडिंग ऑर्डर में, राइट। अब मैं आपको बोलती हूँ कि व्हाट विल बी देयर मीडियन। इनका मीडियन क्या होगा, क्या बोला मैंने मीडियन के लिए, now see beta, if we are having the number of observations in even number, then what will be your median? Median will be your n by 2th term plus n by 2 plus 1th term, और उन दोनों टर्म्स का सम करने के बाद आप क्या करोगे डिवाइडेड बाय 2। मीन्स यू कैन से median of the even observations will be the mean of n by 2th term and n by 2 plus 1th term and divided by
2 से डिवाइड क्यों किया? बिकॉज वी आर टेकिंग मीन ऑफ 2 ऑब्जर्वेशंस, राइट। मीन में आपका क्या था? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, राइट। फॉर एग्जांपल इफ वी आर हैविंग n की वैल्यू हमने ले ली, n की वैल्यू आपने 4 ले लिया, ठीक। तो मीडियन आपका क्या होगा उस टाइम पे? मीडियन क्या होगा? n की वैल्यू आपने क्या ले रखी है? 4, n by 2 मीन्स 4 by 2x टर्म प्लस 4 by n by 2, 4 by 2 प्लस 1th टर्म डिवाइडेड बाय 2। यहां से क्या आ गया आपका? सेकेंड टर्म प्लस 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 प्लस 1 थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय 2। जो भी आपके पास ऑब्जर्वेशंस होंगे उसमें आपका जो सेकेंड टर्म होगा एंड थर्ड टर्म होगा, दोनों का आप लोग सम करोगे एंड डिवाइडेड बाय 2 करोगे। एंड ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि चाहे आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन हो, चाहे आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड हो, फर्स्ट काम आपका क्या होगा? यू हैव टू अरेंज ऑल योर ऑब्जर्वेशंस इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर, राइट। आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे या डिसेंडिंग ऑर्डर में, उसके बाद ही आप अपने फॉर्मूलाज यूज करोगे, राइट। मीडियन के लिए आपको ये दोनों फॉर्मूले याद करने हैं, फॉर ऑड ऑब्जर्वेशंस एंड दिस इज फॉर इवन ऑब्जर्वेशंस, राइट। नाउ कम टू द एग्जांपल्स। एग्जांपल नंबर 12। Example number 12 is the heights of the 9 students of a class are as। आपको क्या गिवन है? हाइट ऑफ द 9 स्टूडेंट्स आपको गिवन है एंड आपसे पूछा गया है कि व्हाट विल बी देयर मीडियन ऑफ द हाइट। हाइट का मीडियन क्या होगा आपसे ये पूछा गया है। आपको डाटा क्या गिवन है? रैंडम डाटा गिवन है 155, 160, फिर क्या है आपका 145। नाउ आपका फर्स्ट काम क्या होगा? Arranging the data in data or you can say observation. Arranging observations in ascending order. फर्स्ट आप क्या करोगे? इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। असेंडिंग में सबसे पहले आप लोग सबसे छोटा नंबर लिखोगे। सबसे छोटा क्या आपका 145। आफ्टर दैट 145 के बाद क्या आएगा आपका? सॉरी फर्स्ट आपका आएगा 144, उसके बाद आपका आएगा 145, 144, 145, उसके बाद आपका 147, उसके बाद आपका है 148, 149, 150, 148 हो गया, 149 हो गया, 150 हो गया, उसके बाद आपका 152 एंड नेक्स्ट इज योर 155 एंड लास्ट में आपका आएगा 160। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं आपके पास? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 9, दैट इज योर ऑड नंबर, राइट। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपके पास 9 है, 9 इज योर ऑड नंबर। तो मीडियन आपका क्या होगा? मीडियन विल बी, मीडियन क्या होगा आपका? n प्लस 1 बाई 2x जो ऑब्जर्वेशन होगा दैट विल बी योर मीडियन, राइट। करो n का वैल्यू क्या आपका 9 प्लस 1 बाई 2x टर्म क्या आएगा आपका? 9 प्लस 1 विल बी 10 डिवाइडेड बाई 2x टर्म क्या आएगा? 5th टर्म। नाउ सी 5th टर्म आपका क्या आएगा? 1 2 3 4 एंड 5। 5th टर्म आपका क्या है? 149 मींस 149 will be the median of their heights, right? अगर अभी यहीं पे आपसे पूछा जाता है कि what will be their mean height, height का मीन पूछा जाता तो आप क्या करते? सबका सम करते एंड डिवाइड करते 9 से। क्यों? क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या है यहाँ पे? 9, राइट। अगर आपसे मीन पूछा जाता तो आप लोग सबका सम करते एंड डिवाइडेड बाय 9 करते। अभी आपसे पूछा है मीडियन। मीडियन के लिए आप क्या करोगे? ऑब्जर्वेशंस को असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे। आफ्टर दैट n प्लस 1 बाई 2x टर्म फाइंड आउट करोगे, दैट विल बी योर मीडियन।
In this case, median is 149. Right? Now come to the next example. Example number 13. 13th example में क्या given है आपको? The points scored by a कबड्डी team in a series of matches are. क्या बोला है? कबड्डी की जो भी एक टीम थी उसने इतने पॉइंट्स को स्कोर किया. 17, 2 and random data आपको given है. Find median of the observations. First क्या करोगे आप लोग again? Arranging observations in ascending order. Ascending order में अरेंज करो. क्या आएगा आपका? सबसे पहले सबसे छोटा डाटा आएगा, दैट इज योर 2. 2 के बाद आपका आएगा 5. नेक्स्ट इज योर 7. 7 आफ्टर दैट योर 8. 8 की फ्रीक्वेंसी कितने टाइम्स आपकी? 2 टाइम्स. नेक्स्ट इज योर 10. 10 इज अगेन 2 टाइम्स. 10 के बाद कौन सा नंबर आएगा आपका? 14. 14 के बाद आपका आएगा 15. आफ्टर 15 17. नेक्स्ट इज योर 18. 18 के बाद आपका कौन सा नंबर आएगा? आफ्टर 18 यू विल राइट 27, 28, 28 एंड लास्ट इज योर 48. बीच में आपका एक नंबर बच गया बेटा 24 आएगा आपका यहाँ. नाउ काउंट द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या है आपके? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या है आपका? 16. 16 इज अ इवन नंबर. नाउ व्हाट विल बी द मीडियन? फॉर्मूला लगाओ आपका मीडियन का. क्या बताया था मैंने आपको? n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म डिवाइडेड बाय 2. राइट? वैल्यू ऑफ n इज 16. 16/2th टर्म प्लस 16/2 प्लस 1th टर्म एंड डिवाइडेड बाय 2. क्या आएगा आपका? 16/2 विल बी 8th टर्म प्लस यहाँ पे क्या आएगा आपका? 9th टर्म एंड डिवाइडेड बाय 2. नाउ सी व्हाट इज योर 8th टर्म? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8th टर्म आपका क्या है? 10 एंड 9th टर्म क्या है आपका? 14. 10 प्लस 14 एंड डिवाइडेड बाय 2. क्या आएगा आपका? ये 24/2 will be equals to 12. Its median of this data will be 12. Right? अगर इसका मीन निकालना होता तो आप क्या करते? टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड डिवाइड किससे करते आप? 16 से. क्यों? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या है आपके? 16. राइट? ये तो हुआ कि आपको डाटा गिवन है और आपको मीन और उसका मीडियन कैसे निकालोगे. नाउ कम टू द नेक्स्ट. नेक्स्ट आपका है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. मोड क्या होगा आपका? लास्ट क्लासेस में भी आपने स्टडी किया है मोड को. मोड क्या होगा आपका? मोड आपका ऐसा ऑब्जर्वेशन होता है बेटा जो आपका अगेन एंड अगेन रिपीट होता है. मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स जो आपका आता है. राइट? जो भी आपके पास डाटा ऑब्जर्वेशंस है उस ऑब्जर्वेशन में जो आपका ऑब्जर्वेशन मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आता है, यू कैन से ऑब्जर्वेशन हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी. जिस ऑब्जर्वेशन का आपका फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगा दैट विल बी मोड ऑफ दैट डाटा. जो भी आपके पास डाटा है उस डाटा में जिस ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है दैट विल बी मोड. राइट? सी एन एग्जांपल फ्रॉम योर बुक. इसमें देखो आप लोग 14th एग्जांपल में यू हैव टू फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग मार्क्स. मार्क्स आपको गिवन है 4 6 5 9 3 2 7 7. जो भी आपके पास मार्क्स गिवन है. अभी आप इसमें देखोगे कि आपका कौन सा मार्क्स ऐसा है जो अगेन एंड अगेन या जिसकी फ्रीक्वेंसी
मैक्सिमम है, जो आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स इसमें रिपीट हुआ। जब आप ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे मोड क्या आएगा यहाँ से आपका। 14th एग्जाम्पल में मोड क्या आएगा यहाँ से आपका, मोड विल बी योर 9, राइट। आप देखोगे कि 9 आपका कितने टाइम्स आया, 1 2 3 एंड 4 टाइम्स। 9 कितने टाइम्स आया आपका, 4 टाइम्स, राइट। 10 का देखो आप, 10 कितने टाइम्स आपका, 1 2 एंड ओनली 2 टाइम्स, राइट। ऐसे ही आप लोग सब नंबर्स का देखोगे, 6 कितने टाइम्स आपका, 1 2 एंड 3, 6 कितने टाइम्स आया, 3 टाइम्स। 7 का देखो, 1 2 एंड 3, 7 भी कितने टाइम्स आया आपका, 3 टाइम्स। मीन्स आप जब सब ऑब्जर्वेशंस का देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, 9 इज द नंबर विच इज हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, दैट इज 4 टाइम्स। तो मोड क्या होगा आपको इस ऑब्जर्वेशन का, 4। नाउ अगर मैं आपको बोलती हूँ अभी इसमें आपका 13th क्वेश्चन में आपका मोड क्या होगा, तो आप क्या करोगे बेटा, जो नंबर आपका मैक्सिमम टाइम रिपीट हुआ तो वही आपका क्या होगा इसमें मोड, राइट। आप लोग देखोगे कि आपका 8 नंबर कितने टाइम्स आया, 1 एंड 2 टाइम्स। 8 आपका कितने टाइम्स आया, 2 टाइम्स। यहाँ पे आपका कौन सा नंबर है अगेन, रिपीटिंग नंबर देखो आपके कौन कौन से हैं, 10 इज अगेन 2 टाइम्स। 8 भी आपका 2 टाइम्स आया एंड 10 भी आपका कितने टाइम्स आया, 2 टाइम्स। नेक्स्ट आपका कौन सा है रिपीटिंग नंबर, आई थिंक 10 and 8 are the two numbers which are repeated। 7 भी आपका रिपीटिंग है, 7 भी कितने टाइम्स आया आपका, 2 टाइम्स। नाउ सी, अगर आपके पास इस टाइप का डाटा आ जाता है कि कोई पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशंस, एक से ज्यादा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मोर देन 1 ऑब्जर्वेशंस आर रिपीटेड सेम नंबर ऑफ टाइम्स, उस टाइम आपका मोड क्या होगा, ऑल दीज 3 नंबर्स विल बी योर मोड। इस केस में आपका मोड क्या होगा बेटा, 8 10 एंड 7 ऑल विल बी योर मोड, कि सबका फ्रीक्वेंसी क्या है आपका सेम, 2 2 2, कि अगर किसी एक का फ्रीक्वेंसी 3 हो जाता तो आपका मोड क्या हो जाता, जिसका फ्रीक्वेंसी आपका 3 होता, बट ऑल दीज हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी दैट इज 2, तो मोड आपका क्या हो जाएगा यहाँ से 8 10 एंड 7, राइट। ये हुआ आपका कि आप लोगों को अगर कोई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस गिवन है, आपको उसका मोड निकालना है, तो क्या होगा, द ऑब्जर्वेशन विच इज हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी विल बी द मोड ऑफ दैट डाटा, राइट। नाउ here completes your introduction of exercise 14.2 students. Still you have any doubt, you can comment me or send me a message. I will be more than happy to take your doubts and queries. I will be back with a new topic, new chapter. Up to then, take care and bye-bye. And also I am requesting you, if you like my videos, please share, comment and subscribe my channel. I will be more thankful to you for this kind of actness. I will be back with a new topic, new chapter. Up to then, take care and bye-bye.